A very good morning to all of you. If you guys are able to hear my voice clearly, please do raise your hands. Okay, thank you so much, everybody. You can put down your hands now. So, class, once again, a very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher, and today we all are going to continue our chapter 2 of your political science book, that is constitutional design. In our last class, we discussed about the guiding values of the Indian Constitution. Okay, so from where we got all the values which we are enjoying today, and the morals and everything like that, visions of different leaders, and how it is like influenced by our national struggles. Okay, national struggles of our leaders or national uh, like citizens who involved in the national movements, right? So class, today we will discuss about the philosophy of the constitution. Philosophy means ethics of the constitution. Okay, values which inspired us, okay, guide us, guided from our freedom struggle, as well as from the philosophies which we or values which we borrowed from other countries also, right? So we will talk about it, philosophy of the Indian constitution. Philosophy of the constitution. Philosophy means ethics and values. So the values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it formed the foundation of India's democracy. Obviously, our freedom the struggle of our freedom by our national leaders and our um, citizens inspired a lot to make to frame the constitution. ओके सो इंडिया का जो डेमोक्रेसी है, हमने अपने फ्रीडम स्ट्रगल से काफी सीखा था कि हमें कैसी कंट्री चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी वांट, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यूज वी वांट टू inculcate in our constitution, right? And these values are embedded in the preamble of the Indian constitution. I already told you the meaning of preamble. It is an introductory page of our constitution where all the guided values or ideals enshrined in it, right? So these values are embedded, or you can say enshrined in the preamble of our constitution. They guide us all the articles of the Indian constitution. They guide all the articles of the Indian constitution, कि जितने भी आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जब बना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे 448 अप्रोक्सीमेटली इतने आपके आर्टिकल्स थे, बट टुडे इट्स लाइक मोर देन 500. तो अमेंडमेंट्स के बाद 500 आपके आर्टिकल्स बन चुके हैं. तो जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एवरी आर्टिकल इज गाइडेड बाय these values which are enshrined in our preamble. We will talk about the values which are our ideals which are enshrined in our constitution later on this chapter. Okay, so now our constitution begins with a short statement of its basic values. This is called preamble to the constitution. जो basic values mention की गई है, sovereignty, ठीक है, sovereignty हो गया, republic, democracy, we the people of India, democratic, fraternity, etc. All these are the short statement of our basic values, what we are following, what ideals we will follow, ठीक है, what values we want to inculcate in our future generation. All these things are shortly mentioned in the preamble of our constitution, and we took this inspiration of preamble from the American model. ठीक है, our Indian constitution or framers borrowed so many provisions from different countries. ठीक है, बहुत अलग अलग कंट्रीज से उन्होंने क्या किया है, बहुत सारी चीजें
इन्होंने बोरो की है हमारे फ्रेमर्स ने, बट टू मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूएबल एंड एस्पिरेबल, ठीक है, कि वो अकॉर्डिंग टू द सिटीजन्स के एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग वो फुलफिल कर सके हम एज अ इंडिया व्हाट वी वांट टू सॉल्व आवर फॉल्ट्स। तो ये जो प्रियम्बल वाला थिंग है, प्रियम्बल took this preamble model from the preamble part from the American model, हमने इससे इंस्पायर होके लिया है। So most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with a preamble, और बहुत सारी countries जो है preamble से ही start करते हैं। We will look after some of the preambles like this thing which you are seeing at your screen. Let me mark it for you. This thing, ठीक है? This is the preamble of the United States of America. United States. We, the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic equality, provide for the canon defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this constitution for the United States of America. ओके तो इन्होंने क्या है अपने प्रीएम्बल में, अपने इंट्रोडक्टरी पेज में क्या है, सारी वैल्यूज मेंशन की है जो वो चाहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। So they mentioned all these values like justice, ensure domestic equality, ठीक है, फ्रेटर्निटी एंड कॉमन डिफेंस होना चाहिए, जनरल वेलफेयर का प्रमोशन ऑफ जनरल वेलफेयर, ठीक है, ब्लेसिंग्स ऑफ लिबर्टी मींस फ्रीडम, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स दे मेंशन इन देयर प्रीएम्बल, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज उन्हें इनकलकेट करनी है, जिन वैल्यूज पे उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये चीजें मेंशन की है। One more example, just now look at the preamble of the South Africa 1996 में बना था साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस इन आवर पास्ट, ऑनर दोज हु सफर्ड फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम इन आवर लैंड। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि साउथ अफ्रीका का जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस को लेके, उसके बारे में पढ़ा। तो दे मेंशन्ड ऑल दोज थिंग्स लाइक जिससे वो सफर किए हैं, ठीक है, जो वो चाहते हैं अपनी कंट्री में रखना, वो सारी चीजें उन्होंने इस प्रीएम्बल में क्या है मेंशन की है, ठीक है। सो दिस इज अगेन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द one of the best constitution of the world and one of the best preamble of the world, preamble of the South Africa. Now just look at the preamble of India. Before that, let us read the preamble of our constitution very carefully and understand the meaning of each of its keywords. The preamble of the constitution reads like a poem on democracy. It contains the philosophy on which the entire constitution has been built. It provides a standard to examine and evaluate any law and actions of government to find out whether it is good or bad. It is the soul of the Indian Constitution. Okay, so now read this preamble of our Constitution, ठीक है, and we read it like a poem, ठीक है, हम एक पोम की तरह से क्या करते हैं, रीड करेंगे like, and it contains it contains all the values, it contains all the ethics which we are following, and through which our constitution is based on. So let us read this preamble of our Indian Constitution. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship,
equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Okay, so now this, as you all know, our Constitution was adopted on 26 January 1949. That's why it's like we gave this Constitution on, like it is like a pledge कि हमने pledge ली थी कि हम अपने आप को like we are giving this we are giving ourselves this constitution. So now what is the meaning of each and every word mentioned in our constitution? Just look at this. Just look at the highlighted words. We the people of India. What is the meaning of we the people of India? It means the constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives and not handed down to them by a king or any outside powers. Like this constitution is will be enacted by the people through their representatives. ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हमारी जो कंट्री है, ये टोटली जो है इनेक्ट की जाएगी लोगों के द्वारा, और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेंगे. इट इज टोटली बेस्ड ऑन people, ठीक है. No monarch or no king or no outside power will rule us, ठीक है. ये we the people of India, it means like हम जो citizens हैं इंडिया के, हम ही क्या करेंगे, we are we will enact our government. ओके, हम ही हमारी गवर्नमेंट चलाएंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव्स. एंड हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी किंग को, आउटसाइड पावर को, मनार्क को या किसी को भी हैंड ओवर नहीं करेंगे. सो हैविंग सोलेमनली resolved to constitute India into a, मतलब लाइक हम बहुत ज्यादा क्या है डिग्निफाइड फील कर रहे हैं, बहुत ही हम क्या कर रहे हैं, हम एक इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं और इंडिया को कैसी कंट्री बना रहे हैं. वी आर मेकिंग इंडिया अ सोवरीन. What is the meaning of sovereign? People have supreme right to make decisions on internal as well as external matters. No external power can dictate the government of India. Like we have the power to make decisions. We have the power to make. We have the right to make decisions on all the matters. Either it is internal or external. We will take the decisions. ठीक है, कोई भी बाहर की पावर आके या फिर बाहर की कोई गवर्नमेंट आके या हमें डिक्टेट नहीं कर सकती है, या हमें रूल नहीं कर सकती है, या हमें ऑर्डर नहीं कर सकती है. दिस इज द मीनिंग ऑफ सोवरीन. सोशलिस्ट, wealth is generated socially and should be shared equally by the society. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities. ठीक है, जितनी भी वेल्थ, जितने भी रिसोर्सेज जनरेट होंगे सोसाइटी में, वो इक्वली शेयर किए जाएंगे. ठीक है, जो लैंड है गवर्नमेंट क्या करेगी, उसकी ओनरशिप रेगुलेट करेगी. ठीक है, एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. अगर कोई सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट होती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसे रेगुलेट करेगी. सोशलिस्ट मींस क्लासलेस सोसाइटी होती है, जहाँ पे ज्यादा ये नहीं रहता कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं रहते हैं, कि आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ओनरशिप में, वेल्थ की ओनरशिप में, राइट. नाउ ये जो टर्म है बेटा सोशलिस्ट, वन मोर थिंग, सेक्युलर पढ़ते हैं उसके बाद बताती हूँ. सेक्युलर, it means citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. Government treats all religious beliefs and practices with equal respect. Now our country और citizens have complete freedom to follow any religion. कोई भी religion follow कर सकते हैं. If you want to follow Hindu,
if you Hinduism, if you want to follow Islam, Christianity, Jainism, Sikhism, Buddhism, etc., anything, whatever religion you want to follow, you have the complete freedom to follow that religion. कोई हमारी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कि इंडिया में रहते हैं तो पर्टिकुलर रिलीजन जो होगा यही हमारा ऑफिशियल रिलीजन होगा. नो, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन. गवर्नमेंट, स्पेशली गवर्नमेंट, आपने देखा होगा मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल में हर एक फेस्टिवल पे, चाहे वो ईद हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो दिवाली हो, ठीक है, हर एक फेस्टिवल पे, कोई भी फेस्टिवल गवर्नमेंट स्कूल में नहीं सेलिब्रेट किया जाता. अगर सेलिब्रेट करते तो सारे रिलीजन, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, सब रिलीजन्स को इंजॉय किया जाता है, या फिर सारे फेस्टिवल्स को मनाया जाता है. बट गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आपने मोस्टली देखा होगा कि उस दिन वेकेशन, हॉलीडे होती है, ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट किसी भी एक रिलीजन या एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करके इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करना नहीं चाहती है. गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट. सब रिलीजन्स को, सारे रिलीजियस बिलीव्स को, प्रैक्टिसेस को इक्वल इंपॉर्टेंस देगी, ठीक है. दिस इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म. गवर्नमेंट विल नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन, ठीक है. एंड स्पेशली स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा, वहां पे कभी भी आप नहीं देखते हो कि कोई किसी भी पर्टिकुलर फेस्टिवल को या रिलीजन को प्रमोट करते हुए किसी को भी नहीं देखते हो, राइट. सो नाउ दिस टर्म सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, जो टर्म है बेटा आपका, देखो, द टर्म सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड इन द प्रीएम्बल through the 42nd constitutional amendment in 1976. 1976 में 42nd constitutional amendment में ऐड किया गया था this socialist and secular term. Okay. Now democratic, what is the meaning of democratic? Democratic means a form of government where people enjoy equal political rights, elect their rulers and hold them accountable. The government is run according to the some basic rules. Democratic का मतलब होता है it is a type of government जहाँ पे जो लोग हैं उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होते हैं. इट इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल. दिस टर्म इज लाइक फॉर दिस इज द डेफिनेशन फॉर द टर्म डेमोक्रेसी. और ये जो डेमोक्रेटिक है वो भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे लोगों को भी क्या है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होते हैं. वो अपने रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं. जो रूलर्स हैं वही क्या है, जिन रूलर्स को वो इलेक्ट करते हैं वो उनके वो ही अकाउंटेबल होते हैं सब चीजों के लिए. और जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग क्या है चलती है. ऐसा नहीं है कि वो मेजॉरिटी में है तो जो डिसीजंस लेना चाहेगी वो ले लेगी. नो, ऐसा नहीं होता है. एंड रिपब्लिक, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा, कोई हेरिडिटरी पोस्ट नहीं होगी, ठीक है. हेड ऑफ द स्टेट का मतलब कि जैसे प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है. हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होते हैं, इलेक्ट करते हैं हम हेड ऑफ द स्टेट को, कोई हेरिडिटरी. अनलाइक ब्रिटिश, अनलाइक यूनाइटेड किंगडम, वहां पे मोनार्क है और हेरिडिटरी पोजीशन होती है हेड ऑफ द स्टेट की. अनलाइक ब्रिटिशर्स, इंडिया में ऐसा नहीं होता है. इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक इलेक्टेड पर्सन होता है. सो this is the meaning of republic. The head of the state is an elected person and not a hereditary position. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Liberty means freedom, ठीक है. In simple terms it means freedom. There are no unreasonable restrictions on the citizens in what they think, how they wish to express their thoughts and the way they wish to follow up their thoughts in action, ठीक है. कोई अनरीजनेबल, नाउ दिस टर्म अनरीजनेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि आप बोल दोगे कोई कुछ भी सोचेगा, ठीक है, और वो रिस्ट्रिक्शन लगा देगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है सिटीजन्स पे नहीं लगाई जाएगी कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो किसी
रिलीजन के बारे में कुछ बुरा भला नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब उन पे रिस्ट्रिक्शन लग सकती है अगर वो कुछ गलत बोलते हैं किसी रिलीजन को लेके, ठीक है, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कुछ गलत बोलते हैं तो उस पे रिस्ट्रिक्शंस लगती है। बट अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं करता सिटीजन्स को। वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनके जो भी थॉट्स हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिलीव किसी पे भी बिलीव कर सकते हैं, फेथ कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, equality of status and opportunity, and to promote among them all equality। all are equal before the law, nobody is superior to no one, चाहे वो हेड ऑफ द स्टेट हो, चाहे वो एक कॉमन सिटीजन हो, चाहे वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, whoever it is, all laws are same for everyone। no nobody is superior to no one, everyone is equal before the law, either it is a rich or poor, man or woman, upper class or higher class, caste, yeah, low, like so called upper caste or lower caste, ठीक है, everybody is equal before the law, nobody is superior। okay, so the traditional social inequalities have to be ended। जो एक upper caste lower caste वाला जो tradition चलता था हमारे इंडिया में, ठीक है, उस इनइक्वालिटीज को अब खत्म करना होगा। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, नाउ यू विल से कि मैम अगर इक्वालिटी है तो फिर रिजर्वेशंस क्यों है? तो नाउ हियर द टर्म इक्वल अपॉर्चुनिटी इज हियर। इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब लाइक उन्हें अपॉर्चुनिटी तो दो कि वो तुम्हारे इक्वली स्टैंड कर सके, राइट। फॉर एग्जाम्पल वुमेन के लिए रिजर्वेशंस है, व्हाई? बिकॉज सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी पहले कि वुमेन भी क्या करे, पार्टिसिपेट करे, एजुकेट हो वुमेन भी, ठीक है, लिटरेट हो, या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वो पार्टिसिपेट करें, या पॉलिटिकली जैसे अभी लोकल लेवल पे 1/3 जो सीट्स है वुमेन की होती है, तो अगर ये रिजर्वेशन नहीं होती तो वुमेन पार्टिसिपेट नहीं करती। तो उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो जिससे सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करे, ठीक है, सोसाइटी में वो इक्वली फील करे, आइसोलेटेड सा फील ना करे। सेम विद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स ऑल्सो, या अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी आप बोल सकते हो। तो ये जो रिजर्वेशंस हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए। ओके, सो ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। कोई भी ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज जितनी भी है उन्हें हमें एंड करना होगा, और गवर्नमेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैन, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, या कोई भी पर्सन हो, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करवाए, ऐसी चीजें लेकर आए जिन्हें की वो इक्वालिटी फील कर सके। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर गवर्नमेंट। Fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Fraternity means all of us should behave as if we are members of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. हम सब एक ही फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है, हमें ऐसा फील करना चाहिए, ठीक है, कोई भी ये ना सोचे अपने फेलो सिटीजन को कि फॉर एग्जांपल वी आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, तो हम साउथ इंडिया को, साउथ इंडियन पीपल को, फेलो सिटीजन्स को जो इंफीरियर समझ रहे हैं, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न को फेलो ये इंफीरियर समझ रहे हैं। नो, वी ऑल आर इंडियंस एंड वी आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। हम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। नोबडी इज सुपीरियर टू नो वन, एवरीबडी इज इक्वल, ठीक है। वी शुड ट्रीट others, we should treat everyone equally। और इससे क्या होगी, we should treat every religion, every person from any caste, और चाहे वो मैन हो वुमेन है, सबको हमें इक्वली ट्रीट करना है। और इससे क्या होगा, इससे ही हमारी जो डिग्निटी है, ठीक है, इंडिविजुअल्स की जो डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो एश्योर हो पाएगी। हमारी जो कंट्री का जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, वो इंक्रीज हो पाएगा, हमें यूनिटी बनी रहेगी, ठीक है। So after that, this is all about this our preamble. Just go through these terms very carefully.
a very small topic is there, institutional design. Now what is this institutional design? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फिलोसफीज है, जो भी वैल्यूज मेंशन की गई है, खाली वो ऐसे ही लिखने के लिए नहीं लिख दी है, ठीक है। हमारी हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इन वैल्यूज को बहुत अच्छी तरीके से क्या किया है, इनकलकेट करने की कोशिश की है, और एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है, बैलेंस अरेंजमेंट्स करने की कोशिश की है, जिससे कि हम जो है लाइक एक बैलेंस रहे, ठीक है, कोई भी सुपीरियर ना रहे किसी से भी। सो much of the document called Constitution of India is about these arrangements, ठीक है। अरेंजमेंट्स क्या है, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन क्या है, हमने अपने डिफरेंट ऑर्गन्स को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में उनकी पावर को डिवाइड कर दिया, प्लस हमने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को हमने क्या कर दिया, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर को डिवाइड कर दिया। दिस इज कॉल्ड द इंस्टीट्यूशनल डिवाइस, ठीक है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आज से 70 इयर्स पहले बना है, ऑब्वियसली कुछ टाइम टू टाइम हम भी इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, टाइम इवॉल्व हुआ है, चेंजेस आए हैं, तो उसके साथ साथ में हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी कुछ चीजें जो है चेंज कर, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चीजें चेंज करने की जरूरत है, या फिर उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है। तो जिन्होंने भी क्राफ्ट किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उन्होंने इतना फ्लेक्सिबल बनाया कि हम उसमें सिटीजन्स के जो एस्पिरेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो चेंजेस क्या कर सकें, टाइम टू टाइम चेंज कर सकें, बट इतने इजीली भी ना करें कि, क्योंकि साथ में फ्लेक्सिबल है तो रिजिड भी है, इतना इजी भी नहीं है उसे चेंज करना कि जब मनाया उन्होंने कर दिया, नो। तो ये जो चेंजेस होते हैं प्रोविजंस में जो टाइम टू टाइम, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बोलते हैं। चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टाइम टू टाइम इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। नाउ जस्ट लुक एट दिस प्रीएम्बल। मैंने आपको बताया सोशलिस्ट एंड सेक्युलर टर्म जो है 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और उसमें ये चीज लेकर आई थी। तो हमारी सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे सिटीजन्स के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए ये अमेंडमेंट लेकर आया गया। तो सोसाइटी में जब चेंजेस आते हैं तो साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस को करने के लिए, ठीक है, जो टाइम टू टाइम हम चेंजेस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ओके, सो हमारा जो अरेंजमेंट है वो if you read the constitution for the first time, it can be quite difficult to understand, yet the basic institutional design is not very difficult to understand. Like any constitution, the Indian constitution lays down a procedure for choosing persons to govern the country, कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चूज करेंगे, क्या उसके पास पावर्स होंगी, कौन से डिसीजंस वो ले सकता है, गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करेगी अपने सिटीजन्स को राइट्स प्रोवाइड करवाने के लिए, अगर कोई राइट वायलेट करता है तो गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है। वी विल टॉक ऑल दीज थिंग्स लेटर ऑन दिस बुक। ओके, सो बहुत ही ब्यूटिफुली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया है, बनाया गया है, फ्रेम किया गया है, और वैल्यूज इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूज जो है इनकलकेट की गई है, प्लस एक बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो सो वी कैन से आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, बिकॉज वी आर changing according to that, our constitution is changing according to that time, as time is evolving, हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंजेस लेकर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, बट ये चेंजेस इतने इजीली भी नहीं लेकर आ रहे हैं, ठीक है। According to the aspirations of the society or aspiration of the citizens, we are doing these amendments. So it is very beautifully designed. Our constitution is very beautifully designed. We should you can say like we should give a tribute to our constitution makers, जिन्होंने ये इतना ब्यूटीफुल जो है हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो एंड वी शुड कि उनका जो मेकर्स थे
वो इतने फॉरसाइटेड थे कि उन्होंने अपने नेशन को इतने ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया एक डॉक्यूमेंट में, जिसमें जितनी फंडामेंटल वैल्यूज, जो हाईएस्ट एस्पिरेशंस हैं, वो सारी की सारी चीजें इसमें मेंशन की गई है। ठीक है। और बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं बने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कि उन्होंने दूसरे कंट्रीज से बहुत सारे प्रोविजंस भी बोरो किए, तो उसमें वहां पे एक ईगो नहीं आया था कि हम क्यों बोरो करें। जो चीजें अच्छी थी उसे बोरो की और अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स उसे मोल्ड किया और उसके अंदर लेकर आए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, गो थ्रू दिस चैप्टर। ठीक है, आई विल सेंड यू द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर टुडे। ठीक है, गो थ्रू इट। कोई प्रॉब्लम होती है डू लेट मी नो। यस खुशी, प्लीज अनम्यूट योर डिवाइस। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। यस, And what is the meaning of intoxicating? इंटॉक्सिकेटिंग मीन्स लाइक एल्कोहलिक, जो बोलते हैं ना, जैसे कि शराब पीने के बाद क्या रहता है, नशा रहता है। ठीक है, आप अपने कॉन्शियसनेस में नहीं रहते हो। ठीक है, तो आप बोल सकते हो अनकॉन्शियसनेस को बोला गया है इंटॉक्सिकेटिंग, जो आपको And contradiction? कॉन्ट्रोडिक्शंस का मतलब आप बोल सकते हो कि जैसे बात, आप बात कर रहे हो, मैं बात कर रही हूँ, हम दोनों की बात में कोई एक जैसे कि डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो दैट इज नोन एज कॉन्ट्रोडिक्शन। डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हैं, आप अपने डिफरेंट ओपिनियंस दे रहे हो, मैं अपने डिफरेंट ओपिनियंस दे रही हूँ, और कोई थर्ड पर्सन हमारे ओपिनियंस को लेके क्या है, एक कंबाइंड ओपिनियन दे रहा है, तो दैट इज नोन एज कॉन्ट्रोडिक्शंस। And ma'am, difference between democratic and democracy? Democratic and democracy both are basically both are same. Democracy is a form of type of government, okay, और democratic मतलब कि एक we are following the policy of democracy, that is democratic. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Yes, Shivanshu, like we have very few seconds left with us. You may call me or message me your doubts. Yes, Shivanshu. हेलो मैम। मैम फ्रीमेंटली, मैम फिनाइटी का मैम समझाना। क्या समझाना? मैम Fraternity. यस मैम। फ्रेटर्निटी मीन्स वी ऑल बिलोंग्स फ्रॉम अ सेम फैमिली, सो हम लोग को ऐसा, हम सब एक ही फैमिली से हैं, तो हमें किसी को भी इंफीरियर नहीं समझना चाहिए।